हाय गाइस, वेलकम टू डे 3 ऑफ आवर क्लाउड एंड डेवऑप्स लर्निंग सीरीज। मैं हूं डैनिश शर्मड़ एंड आज हम लिनक्स का फुल हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करने वाले हैं। आज के बाद आप बिगिनर नहीं, प्रैक्टिकल लिनक्स यूजर बन जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो हम पहले देखेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं आपको इजी वे में बताता हूँ। इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ओके, तो पहले हम लेंगे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्यों यूज करते हैं? कुछ लोग गेमिंग के लिए यूज करते हैं, ओके। तो कुछ लोग कोड करने के लिए यूज करते हैं, किसमें? पाइथन और जावा और एटसेट्रा लैंग्वेजेस। एंड कुछ लोग यूज करते हैं जो कि डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं, वो जेनकिंस इंस्टॉल करते हैं उसमें। जेनकिंस, ओके। एंड सेकंड हम लेते हैं हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में मोस्टली क्या होता है? सीपीयू होता है, रैम होती है और आईओ होता है, ओके। तो मोस्टली, बट हम जब इंस्टॉल करते हैं जेनकिंस, जो कि आप सीपीयू जो कि आप हार्डवेयर पे करते हो, उसमें सीपीयू होता है, रैम होता है, but it did not directly talk with CPU. It's first talk with the OS. What is BIOS? It's operating system, and it's medium between software and hardware. So it's act as a bridge between your software and hardware. So it's all process called as operating system. Most of the process are done on Linux. So operating system इसमें इसके बीच में आएगी. So it's the middle between the software and hardware. It's the bridge between your software and hardware. That is the operating system. So most of the process are done within Linux. So question is that Linux and most of the people or organization use Linux. तो इसका आंसर इजी है। तो कैसे? फर्स्ट, लिनक्स इज अ फ्री। सेकंड, इट्स द ओपन सोर्स। सिक्योर एंड इट्स फास्ट। So it has many distributions like Red Hat, Ubuntu, CentOS, etc. But most of the people use free distribution like Ubuntu, Alpine, Debian, or etc. The people always prefer fast running operating system. The operating system which are not crashed or which are not slow in their production system. That's one of the key reason the Linux is using operating system in production system. Operating system used in the production system. So मैंने कहा है वैसे भी it is very fast and it is very secure and also it's a free nature. तो अभी हम लिनक्स आर्किटेक्चर देखते हैं। तो मैं आपको इजी करके बताता हूँ। It's complicated, but it's not even to me explain in 30 minutes to explain entire Linux operating system. So what I will do, I will try to keep it as crisp as possible. So so firstly हम इसमें क्या देखते हैं? कर्नल। पिक्चर में देखने वाले कर्नल। So kernel, firstly you need to understand what is the kernel. So kernel is the heart of operating system. इसके लिए हम डायग्राम्स निकालते हैं तो आपको चीजें ग्रैब होने में दिक्कत नहीं होगी।
ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? कर्नल है। ये क्या है? सिस्टम लाइब्रेरीज। ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये यूजर प्रोसेसेस। और ये थर्ड कंपाइलर्स। So here is operating system we discussed earlier. Now we discuss kernel. So kernel is nothing but heart of operating system. मैंने तो कहा है पहले. So it responsibility is nothing but the communication between your hardware and software, and it's responsible for the four responsibilities. That is, the first is device management, second memory management, third process management, and fourth handling for system calls. So if anyone asks the question what is the kernel, तो आपको आंसर आना चाहिए. The second आता है system libraries. The system library is basically responsible for perform as a task. Let's say user perform a task, so it comes from your system library and then it goes to the kernel. ये फ्लो ये नीचे फ्लो है ऐसा. फॉर एग्जांपल जो आप मार्केट में से लैपटॉप लेते हो, एनी डेल और एचपी और एनी कंपनी का, सो आप उसमें ऐप इंस्टॉल करते हो और गेम सेटअप लॉन्च करते हो और कुछ भी प्रोसेस करते हो. जो इंस्टॉल करते हो, जो प्रोसेस करते हो, वो किसके ऊपर? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर करते हो, जो कि विंडोज है और लिनक्स है और कुछ भी हो सकता है. तो उसके लिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है. तो हार्डवेयर में क्या आता है? रैम आती है, सीपीयू आता है. तो उसके उसके आता है सर्वर. तो हम इसकी भी डायग्राम एक ड्रॉ करते हैं तो आपको चीजें ग्रैब होंगी. तो पहले हमें ये हटाना पड़ेगा. द डायग्राम सिंपल है, नथिंग बट यूजर. आपको तो ध्यान में आ चुकी होगी. ओके. तो फर्स्ट में क्या है बेसिकली, जो कि हम लोग यूजर. सेकंड में आएगा जो आप इंस्टॉल करते हो, ऐप. ओके. थर्ड में क्या आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लिनक्स. फिर आएंगे हार्डवेयर, सीपीयू, रैम. उसके बाद आएगा जो आपका लैपटॉप डेल और जो होगा एचपी.
मोस्टली तो मैं इसको सर्वर ही कहूँगा। तो इनका फ्लो क्या होगा, डाउनलोड होगा, डाउनवर्ड, ऐसे। इट इज द सिंपल एग्जांपल। ओके, तो अब हम हैंड्स ऑन देखेंगे लिनक्स का। तो फर्स्ट, व्हाट इज डायरेक्टरीज? तो डायरेक्टरीज बेसिकली फोल्डर्स होते हैं जहाँ डेटा स्टोर होता है। लिनक्स में हर प्रोजेक्ट और सर्वर, लॉग्स, एप्लीकेशन कोड सब डायरेक्टरीज अंडर ही होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं लिनक्स कमांड। जब पहले हम डायरेक्टरी रिलेटेड कमांड्स यूज करेंगे और सीखेंगे। तो फर्स्ट कमांड ls, it is the fundamental command of in Linux. It shows all list of the processes or list of the entities shows on our operating system. That is a demo script, kit demo, a.txt demo sh, devops2, it is the directory, example.sh, it is file, my node app, it's the application, my script is also directory, random is also directory. So there is a pwd command is there. It's basically check where we are slash home slash मडके। ओके, तो मैंने आपको ls pwd कमांड बोले बताई। थर्ड कमांड होती है, तो आपको ये ना एक इन फोल्डर क्रिएट करना है लिनक्स में। तो mk डायरेक्टरी, mkdir फोल्डर नेम, तो devops2 ऑलरेडी है, तो हम devops बनाते हैं। ओके, तो हम फिर से ls करेंगे। आप देखेंगे इसमें फोल्डर क्रिएट हो चुका है devops करके। तो हम इसके अंदर अंदर जाते हैं devops डायरेक्टरी के अंदर। तो कमांड है cd और आपका डायरेक्टरी नेम जो कि devops है। ओके, आप अंदर गए, आप बाहर भी आ सकते हो, cd स्पेस डबल डॉट, बाहर आ गए। तो ये कमांड रियल डेवऑप्स में यूज होता है जब हम लॉग्स और स्क्रिप्ट्स के फोल्डर्स बनाते हैं तब। अब हम कुछ फाइल कमांड्स देखेंगे मोस्ट यूज इन द डेवऑप्स। तो वी क्रिएट द फर्स्ट फाइल, कहाँ है, pwd चेक होम स्लैश डिमोन के। तो हमें जाना कहाँ है, डेवऑप्स में। ओके, cd डायरेक्टरी नेम डेवऑप्स, डेवऑप्स में आ गए। हमें फाइल क्रिएट करना है, तो यूज टच कमांड, टच एंड योर फाइल नेम notes डॉट txt। और मल्टीपल फाइल्स आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि नोट डॉट टेक्स्ट, नोट डॉट लॉग, नोट डॉट text। इट्स नॉट नेमिंग कन्वेंशन, इट्स ओनली क्रिएट। आपको मैं दिखाता हूँ क्रिएट हुई क्या नहीं। तो हम फिर से एलेक्स करेंगे। ये देखो, नोट डॉट लॉग, नोट डॉट टेक्स्ट, नोट्स डॉट txt, या इट्स क्रिएट। तो हम क्या करेंगे, इसमें राइट करेंगे समथिंग।
तो हम राइट करते हैं नोट डॉट टेक्स्ट में, इसमें राइट करते हैं तो कमांड होती है इको। इको, तो मैं नाम क्या लिखूं? मेरा नाम लिख सकता हूँ नैनेश्वर मुड़ के। और एक किस में जाना चाहिए? नोट्स डॉट टीएक्सटी में जाना चाहिए, नोट्स डॉट टीएक्सटी। ओके, एंटर। तो अगली कमांड हम रीड कर सकते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं। तो कमांड क्या है? कैट कमांड यूज करते हैं हम रीड करने के लिए। कैट नोट्स डॉट टीएक्सटी। ये देखो, इसने क्या प्रिंट कर दिया, आउटपुट क्या है, ज्ञानेश्वर मड़के। तो इको, तो मुझे विदाउट टच कमांड करके फाइल बनानी है, तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ईगो। ओके, और टेक्स्ट हियर, सैंपल फाइल बनाता हूँ, सैंपल डॉट टीएक्सटी। ओके, एंटर। सैंपल डॉट टीएक्सटी फाइल भी बन चुकी है, आप चेक कर सकते हो। ये देखो, सैंपल डॉट टीएक्सटी विदाउट टच कमांड। तो आप उसके अंदर भी जा सकते हो, आप रीड कर सकते हो यूजिंग कैट कैट सैंपल डॉट टीएक्सटी। ये देखो, टेक्स्ट हियर प्रिंट कर गया है। नेक्स्ट, कॉपी फाइल। हम क्या करते हैं, हम डेओप्स में इसमें एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। उसके लिए कमांड क्या है, एम की डायरेक्टरी सैंपल। देखो, देखो, इसका कलर भी चेंज हो जाता है, डायरेक्टरी आता है तो ब्लू हो जाता है, उसके बाद जो फाइल्स होती है उसका कलर व्हाइट होता है। ओके, तो आपको सीडी कमांड करना है उसके अंदर जाने के लिए। तो पहले आपको मैं बताता हूँ आप कॉपी कैसे कर सकते हो। मुझे क्या करना है, जो हमने notes डॉट टीएक्सटी में जो सब लिखा है नोट डॉट टीएक्सटी, मुझे वो फाइल नोट डॉट टीएक्सटी, वो सेम फाइल सैंपल डायरेक्टरी में कॉपी करके पेस्ट करना है और मूव करना है। तो पहले हम सी कॉपी देखेंगे, सीपी, फाइल का नाम नोट्स डॉट टीएक्सटी, एंड देन आपका डायरेक्टरी का नेम सैंपल और स्लैश, तो इसमें चला जाएगा सैंपल में, आप देख सकते हो। ओके, तो हमें सैंपल में जाना जाना पड़ेगा, उसके लिए सैली सैंपल, अंदर आए एलएस किया, ये देखो नोट्स डॉट टीएक्सटी, इधर भी हमने इसको रीड किया, नोट्स डॉट टीएक्सटी। देखो नैनेश्वर मर गए, लिखा है इधर, एक कॉपी हुआ। तो हम फिर से बाहर जाते हैं, तो हम मूव करते हैं, उस फाइल को मूव करें, हम नोट और नोट डॉट लॉग को मूव करते हैं। ओके, तो सिंपल कमांड है एमवी मूव फाइल नेम नोट डॉट लॉग। आपको मूव किधर करना है, दूसरे डायरेक्टरी में करना है जो कि हमने बनाया सैंपल। तो क्या करने का, सैंपल स्लैश नो, why it shows cannot move not dot log to sample, because it's small alphabet sample, हमने जो बनाया है उसमें हमने कैपिटल यूज किया है। सो फिर से हम लिखते हैं और सैंपल कैपिटल वन, एंटर, एंड हम जाते हैं सैंपल में और देखते हैं आया क्या नहीं।
ये देखो नोट डॉट लॉग से बाहर आते हैं। ओके, तो मुझे डिलीट करना है। मुझे क्या डिलीट करना है? जब हमने मूव किया mu कमांड करके, तो यहाँ से वो चला गया है, जो हमारे पेरेंट डायरेक्टरी में था डेवॉप्स डेवॉप्स के अंदर, वहां से मूव होके वो सैंपल में चला गया। ये देखो इधर नोट डॉट लॉग नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये भी एडिशनल थिंग है। नेक्स्ट हमें डिलीट करना है तो हम rm कमांड यूज कर सकते हैं। rm, मुझे क्या करना है, नोट डॉट टीएक्सटी डिलीट करना है। नोट डॉट टेक्स्ट, नॉट टीएक्सटी, टेक्स्ट। इट्स डिलीट, ls, इट्स रिमूव, इट्स डिलीट। ओके, लिनक्स में कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के बाद हम लॉग्स चेक करते हैं, और जो कमांड्स यूज करते हैं, so mostly it's file knowledge based। जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए हम लॉग चेक करने के लिए जो कमांड्स यूज करते हैं, उसमें फाइल नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हमें क्या, हम कौन से कमांड्स देखेंगे? सिस्टम मॉनिटरिंग कमांड्स, जो कि रियल सर्वर में और रिसोर्सेस मॉनिटर करना हो, तो वो कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रियल सर्वर और रिसोर्स मॉनिटर करने के टाइम यूज होते हैं। ओके, तो हम यूज करते हैं टॉप कमांड। तो टॉप कमांड की यूज होता है, जो आपके डेस्कटॉप पे जो रनिंग प्रोसेसेस होते हैं, वो शो करता है टॉप कमांड, जो कि उसमें कॉलम होते हैं, मल्टीपल कॉलम्स, PID यूजर, PR, NI, VRT, RES, and so on. CPU also there in the percentage, memory, time plus command. So there is multiple PID, that is the process identity. How many CPU takes, how many memory takes. Okay, तो फर्स्ट देखा हमने टॉप कमांड। देख हमें उसके बाद हमें स्पेस चेक करना है, डिस्क स्पेस कितना है इसमें। तो df-h, इसमें हम देख सकते हैं फाइल सिस्टम, और ये सब लोकेशन है, फाइल सिस्टम के लोकेशन है, जो इस फर्स्ट कॉलम में दिए हुए फाइल सिस्टम में। तो उसमें साइज कितनी है, उसमें कितने यूज हुए, अवेलेबल स्पेस कितनी है, यूज कितने परसेंट हुआ है, और माउंटेड किसके ऊपर है, तो सब है इसमें। ओके, उसके बाद हमें रैम यूजेस चेक करना है, तो कमांड है फ्री डैश एम। ये देखो मेमोरी टोटल कितनी, यूज कितनी हुई, फ्री कितनी है, शेयर्ड कितनी है, और अवेलेबल कितनी है। ओके, तो ये कमांड्स दिया हुआ, उसमें डेवलप डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट के टाइम, और इश्यूज हम जो रिजॉल्व करते हैं उस टाइम में, और ट्रबल शूटिंग के टाइम में यूज होते हैं मोस्टली। तो हम नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट 4, परमिशन बेसिक्स। जो लिनक्स में सिक्योरिटी स्ट्रांग होती है थ्रू द परमिशंस, तो कमांड है ls-l। तो ये देखो pwd करता हूं मैं इस पाथ में। ये कौन सा पाथ है, ये बताओ पहले मुझे, एब्सोल्यूट पाथ है क्या रिलेटिव पाथ है? एब्सोल्यूट पाथ है। तो
ls किया तो इसमें कौन कौन से फाइल है, notes डॉट टेक्सटी और sample डॉट टेक्सटी एंड सैंपल इट्स डायरेक्टरी। ओके, तो मैंने इस ls कुछ वो ls कमांड चला ls डैश एल, तो इसकी परमिशन दी है कौन से फाइल के लिए कौन सी परमिशन होनी जरूरी है। ये देखो, सैंपल डायरेक्टरी के लिए drwxr और नोट्स डॉट टेक्स्ट के लिए rwr1 ऐसे बनाया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरा कैलकुलेटर देखेंगे, हम कैसे परमिशन असाइन कर सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। जैसे कि हम शेल स्क्रिप्टिंग सीखने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, तो कुछ कुछ स्क्रिप्ट्स बनाएंगे हम बेसिक्स, तब आपको मैं बताऊंगा कि एक्चुअली क्या होता है। इसका एक कैलकुलेटर है बेसिकली, आप भी असाइन कर सकते हो परमिशन आपके हिसाब से। जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स यूज्ड फॉर डिप्लॉयमेंट्स, तो डिप्लॉयमेंट्स में स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए परमिशन बहुत जरूरी होती है। तो इट्स बेसिक कमांड्स हमने डिस्कस किए हैं। अब हम देखेंगे, हमने तो लिनक्स पढ़ा है क्या है, इट्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज वाइडली इन सर्वर क्लाउड प्लेटफॉर्म बैकबोन ऑफ डेवऑप्स एनवायरनमेंट्स। लिनक्स आर्किटेक्चर हमने डीप में पढ़ा है, जो आपको इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वाई लिनक्स इन डेवऑप्स से भी हमने पूरा एंटायर सेशन है, जिसने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखना। हमने अभी कॉमन लिनक्स कमांड भी देखी है, सिस्टम कमांड देखी है, इंपॉर्टेंट फाइल सिस्टम इन लिनक्स के प्रीवियस वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। फाइल सिस्टम इन लिनक्स, it's important file system in Linux. First is a root directory. The root directory is the top file system hierarchy. It's serving as a starting point for all the files and folders. It's nothing but this symbol. Why it's okay. That is a file system in Linux. First is the root directory. The root directory क्या है? The top file system hierarchy, serving as a starting point for all the files and folders. Second is a slash home. It's a dedicated repo for users' personal files and data. That is the user specific subdirectories, and the second one organization subdirectories. The first one user specific subdirectories में क्या आता है, इट्स जो यूजर क्रिएट करता है अपॉन यूजर क्रिएशंस, जो फाइल्स बनाता है वो स्लैश होम डायरेक्टरी में आता है। और ऑर्गेनाइजेशन सब डायरेक्टरीज में क्या आता है, डेस्कटॉप डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट्स पिक्चर वीडियोस टेम्पलेट्स पब्लिक। देन आता है इट्स स्लैश ईटीसी। So slash etc, this directory contains the host specific system wide configuration files, and it stores the configuration files required by all programs as well as startup and shutdown shell scripts. So it's mostly used for configuration files. Then slash var, var, it's it's in that it's logs and variable data containing. Then slash bin, that is the bin directory contains binary executables or Linux programming. This includes the common Linux commands for all users. That is the single user mode, cat, chown, chmod, ping, cp,
mk directory, ls, cat, remove and move. Those are the basic commands are containing the /bin essential commands. Then /root, it's the admin home directory, the secure repo for configuration files and personal settings. Store the configuration files for root account. Then next is the /boot. It is a critical directory or contain essential files needed to successful boot the system, and the files include like grub, bootloader files, root files, system files, Linux kernel files. Next आता है /dev. It contains the special files to representative of devices are attached to the system. Simple. These include console, hard drives, other peripheral devices plugged to the system. Example, device file. The device file is /dev/sda. Okay. Next is a /lib. That is the containing library images required in the /bin or esbin. Then lib64 required for system to boot and run normally. Then /media contains temporary sub-drive files and optical drive files are automatically mounted to the media. Then /mnt, it is a temporary mount point and it is most often used. Then next is a /opt add. It's the application or software packages provided third-party vendor. /temp, temporary files are stored in the /temp directory created user/system, in most cases deleted when system rebooted. It containing it's a /temp. Next is /opt, add on application or software packages that are provided third-party vendor. Then /var, variable that contain files that constantly changing size, that is the logs. And then last is the /run, and you store the volatile runtime data since system was started. Those are the important paths और फाइल सिस्टम इन लिनक्स जो इंटरव्यू में आपको इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। /etc क्या है, /var क्या है, /root क्या है, तो आपको आना चाहिए। इजी है, एक बार फिर से आप वीडियो देखो। ओके। देन डे 3 इंटरव्यू क्वेश्चंस। व्हाट इज लिनक्स हमने कवर किया है, कर्नल वर्सेस सेल ये भी कवर किया है, लिनक्स वर्सेस विंडोज ये भी कवर किया है सेकंड वीडियो में। कॉमन लिनक्स कमांड्स हमने अभी हैंड्स ऑन किए हैं, वही कमांड्स हम यूज करेंगे नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट सेशन में भी जब आप शेल स्क्रिप्ट सीखने वाले हो। देन व्हाट इज chmod ये भी देखने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। chmod कैलकुलेटर, व्हाट डज dfh हमने देखा, हाउ टू चेक रनिंग प्रोसेसेस, डिफरेंस बिटवीन cp एंड me। आज हमने कमांड्स प्रैक्टिस की, रियल आउटपुट्स देखे और डेवऑप्स में यूज केसेस समझे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डे 4 में हम शेल स्क्रिप्टिंग एंड स्क्रिप्ट्स देखेंगे कि आपको आइडिया आ जाएगा कि ये स्क्रिप्ट्स क्या होती है और ये कैसे बनाती है और इसका यूज क्या है। इसका टोटल हम हैंड्स ऑन देखेंगे, ये रियल में सब हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो तो ये जर्नी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब ऐसे वीडियो देखिए और ऐसे ही सपोर्ट दीजिए। अगर आपको आज का सेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और लास्ट में कमेंट में लिखना ना भूलना, लिनक्स हैंड्स ऑन कंप्लीटेड। मुझे लगता है कि इस सेशन का आप हैंड्स ऑन करो करो और कंसेप्ट एंड प्रैक्टिकल आपके कवर हो जाएंगे।
चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक गुड बाय। थैंक यू।